as a nation, rather harmed the minorities of Bangladesh and our aspiration, our objectives in this subcontinent. Their complaint is that there is an absence of cooperation in diplomatic dialogues, in political aspiration and understanding. I spent nearly a year at this prestigious college, and in this college I observed three types of Bangladeshi officers. Whom have you produced after independence? ये इनका हाल है, और इनके भूतपूर्व सैनिक, रिटायर्ड सैनिक ये कहते हैं कि कलकत्ता दूर नहीं है, कलकत्ता को हम कैप्चर कर लेंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो. Oh general, you fought the war, you did an excellent job, it's your duty to you have done your duty, now leave it to us. Is this your rational mindset? This should be thought of. What are you doing to safeguard your minorities? After ascending to the throne, his policies was pro-Pakistani. जय हिंद दोस्तों, मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का दोस्त, एजुकेटर. Today's video is not going to be about any particular examination, nor about any current affairs, at least from the point of view of competitive exam. This video is dedicated to the contemporary Indo-Bangladesh relation and the way our relationship is deteriorating, and it is also related to the the incident that happened in the previous few days. वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा मंशा ये नहीं है कि मैं किसी को अपमानित करूँ, छोटा करूँ, ठीक है, यहाँ पे गाली गलौज करूँ. आई एम रिसर्च स्कॉलर एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम टोटली स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, okay, and I want full cooperation in the comment section. Kindly share your views regarding my assessment. Also share your assessment in the comment section. अभी जो हालात है बांग्लादेश में, उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर बहुत बुरी तरह से आ रहा है, ठीक है. और जो बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है सबसे पहले देखा जाता है वेस्ट बंगाल, देन असम, स्पेशली साउथ असम एंड त्रिपुरा, ठीक है, बिकॉज दिस आर दी नेबरिंग स्टेट्स. दो मेघालय इज ऑल्सो नेबरिंग स्टेट, बट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना इन तीनों स्टेट में होता है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक मैटर, ठीक है. ऑलराइट, आज भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे. इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ओके, दैट्स हैपेंड, बट माय कोर कंसर्न इज the trajectory of Bangladesh after 1971. Of course, they came into existence after 1971. Prior to that, there was a part of Pakistan. बांग्लादेश के लोग एक बात कहते हैं हमेशा कि कोऑपरेशन नहीं हो रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑन डिप्लोमेटिक लेवल, ठीक है, प्राइमरी डिप्लोमेटिक लेवल एंड पॉलिटिकल लेवल ऑल्सो, ठीक है. तो वहाँ पे क्या था कि देयर कंप्लेंट इज दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ cooperation in diplomatic dialogues, in political aspiration and understanding. देखिए, ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, हर किसी न किसी गलती हो सकता है, और दो देश ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही तरफ आगे बढ़ते रहे. दे माइट हैव डाइवर्जिंग एस्पिरेशंस, ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा आरोप लगाते जाइए, ठीक है. इट शुड बी क्लियर टू all the people across the globe that after 1971, okay, India has never ever behaved like a elder brother with Bangladesh, ठीक है, nor we had any kind of hegemonic aspiration, ठीक है. We liberated them and left the nation to them, that you govern your country the way you want, ठीक है. हालांकि उसके बाद हमने कुछ गलतियाँ किया, but our mistakes was internal mistakes, okay, not international mistakes. I hope what I mean by internal mistake and international mistake, ठीक है. So our mistakes didn't harm Bangladesh as a nation, rather harmed the minorities of Bangladesh and our aspiration, our objectives in this subcontinent. It is well known to the academic circle and strategic circle that without the help of India, the liberation of Bangladesh was absolutely impossible. Even after that, हमने कभी भी ऐसा ये बर्ताव नहीं किया कि हमने हमेशा बड़प्पन दिखाया, ठीक है, बड़प्पन दिखाया. लेकिन कभी भी हमारा रवैया ऐसा नहीं रहा कि यू बिलोंग टू यू आर इन्फीरियर टू अस. वी नेवर डिस्प्लेड सच बिहेवियर, ठीक है, एटलीस्ट इन द डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल लेवल. we always tried to help
We always cooperated with Bangladesh in whatever forum we could. ठीक है, तो बांग्लादेश का रवैया कैसा रहा? बांग्लादेश का रवैया बहुत ही मतलब अगर आप कोई ऑब्जर्व करें एकेडमिकली, अगर उनका ट्रेजेक्टरी देखें आफ्टर 71 टू टिल डेट, I feel like they had a diverging opinion regarding India, absolutely diverging opinion among their political circle. एक पार्टी है उनका जो प्रो इंडिया, अनदर पार्टी इज नॉट प्रो इंडिया. ठीक है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, nobody is saying that be pro India or be pro to other country or be Indian whatsoever. It's your interest. Ultimately, interest matters. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द वन हु सपोर्टेड यू, ठीक है, द वन हु सपोर्टेड यू इन योर फ्रीडम स्ट्रगल. आप देख लीजिए दुनिया का, आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऐसा कौन सा देश है, ठीक है, जिसका खुद का आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है, तब भी जाके वो किसी और देश को, अपने पड़ोसी को मदद करता है, उसके स्वाधीनता संग्राम में मदद करता है, ये जानते हुए कि उसके ऊपर भी बहुत खतरा मंडरा रहा है. जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, I request them to not rethink, just recall the days of 1970-1971 of India. कैसा हाल था हमारा भारतवर्ष का, जो इकोनॉमिक लैंडस्केप जो था वो कैसा था. उस हाल पे जिस दौरान में हम लोग वे आर लाइक शिप टू माउथ नेशन. ऑल ऑफ यू आर अवेयर दिस शिप टू माउथ जो फ्रेज जो ये कहाँ से आया और किस मतलब कारण आया. ठीक है, उस मौके पे भी, उस हाल पे भी हमने बांग्लादेश का सहायता किया. वी फॉट अ वॉर ऑफ 13 days. ठीक है, एंड वी ब्रोक पाकिस्तान इनटू टू एंड वी लिबरेटेड बांग्लादेश. ठीक है, एंड वी लॉस्ट मैनी लाइव्स. ठीक है, बट हमने कभी इसका मतलब गिला शिकवा नहीं रहा, बिकॉज वी आर अ कंट्री विद गुड कैरेक्टर. ठीक है, हमने कभी इसका मतलब अहंकार नहीं जताया बांग्लादेश के ऊपर कि हम देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया. We never said so. We never said anything to Bangladesh. All that we wanted was cooperation in the diplomatic level, at the economic level. ठीक है, at all level we wanted cooperation as a good neighbor. लेकिन आप बदले में हमें क्या मिला, उसको समझने के लिए एक इवेंट को जानना पड़ेगा. ठीक है, now I'm from 1971 to I'm jumping to 2002 or 3. ठीक है, I am forgetting the name of the historian, okay, military historian of India, very famous. He visited the Command and Staff College of Bangladesh. I think it's a Command and General Staff College. Whatsoever it's a Staff College. Okay, in short, it is called Staff College of Bangladesh. He visited there because one of his colleague or friend of Indian Air Force was attending a course in the Bangladesh Staff College. He was an officer from Indian Air Force. ठीक है, तो जब उनका जो कोर्स खत्म हुआ था, तो खत्म फेयरवेल पे एक स्पीच होता है, तो वे जो एयरफोर्स ऑफिसर जो थे उन्होंने एक स्पीच दिया. स्पीच पे उन्होंने ये बोला कि आई स्पेंड नियरली एन ईयर दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड इन दिस कॉलेज आई ऑब्जर्व्ड 3 टाइप्स ऑफ बांग्लादेशी ऑफिसर्स. फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफिसर्स वेयर प्रो पाकिस्तानी, देयर सेंटिमेंट्स वर प्रो पाकिस्तानी. सेकंड टाइप ऑफ ऑफिसर्स वेयर प्रो चाइनीज. ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑफिसर्स वेयर प्रो इंडियन. ओके, लेकिन उन्होंने कहा एक अचरज सा बात है, ही नेवर सॉ एनी ऑफिसर हु वाज प्रो बांग्लादेश. दिस इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग. और ये कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड द बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस. कैन यू इमेजिन द कंडीशन? कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स? These are the officers who in future will lead their country. A man or a woman in uniform is supposed to be patriotic, supposed to think about his or her country first. Of any country. A Chinese soldier or officer will always think the betterment of China. Thereafter comes pro-Russia or pro-ye falana dhimkana. An Indian officer will think first about his country or her country. Thereafter comes any other country. लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टी गंगा बह रही है. ठीक है, so this was the character or morale of their armed forces. Okay. तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि उनका जो फौज है वो किस दिशा में जा रहा है. Now going back to 1970s and 80s. ठीक है, और बांग्लादेश आर्म फोर्सेस का एक खासियत तो है, कू में एक्सपर्ट है, हमेशा कू करते हैं. मिलिट्री कू is like
काइंड ऑफ एक बदनामी है ये, एक बदनामी है, गाली एक फ़ौज के लिए, बिकॉज अ प्रोफेशनल आर्मी विल नेवर इंडल्ज इटसेल्फ इन ऑल दिस एक्टिविटीज़। लुक एट इंडिया। मैं अपने देश का प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, नॉट दैट, नॉट दैट। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर अनडाउटेडली बेस्ट सो फार द कैरेक्टर इज कंसर्न। In terms of equipments, we may lag, anyone can lag, but character is totally up to the soldier, and that should not be compromised at any cost. आप देख लीजिए भारत के पड़ोस में, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना देख लीजिए। चाइना क्या है? अब देयर एलिजेंस इज टुवर्ड्स दिस कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? वाई शुड ए सोल्जर हैज एनी सॉर्ट ऑफ एलिजेंस टू ए पोलिटिकल पार्टी? वाई? A soldier's allegiance is to the country, always and every time. There must not be politics in soldiering. And Pakistan, it's better not to talk about them. And Bangladesh, they're following these two countries. एक कहावत है कि बड़ा भाई जिस तरफ चलता है छोटा भाई उसी तरफ जाता है। तब बांग्लादेश अपना बड़ा भाई किसको मानता है? पाकिस्तान को, इसीलिए कू करता जा रहा है। चीन को, इसीलिए पॉलिटिक्स में जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ झुको, हम लोग ये नहीं कह रहे। हम लोग ये कह रहे हैं, ऑल दैट आई एम सेइंग इज बी प्रोफेशनल आर्मी, बी सोल्जर ऑफ कैरेक्टर, बी एन आर्मी ऑफ कैरेक्टर। और पिछले साल जब जो हादसा हुआ था बांग्लादेश में, उस वक्त एक बांग्लादेशी ऑफिसर थे जो बोल रहे थे कि कलकत्ता दूर नहीं, हम जब चाहे ले सकते हैं, और भी फलाना ढिमकाना। ठीक है, इस साल तो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप लेके हुआ। मैं कभी कभी इन लोगों को देख के बहुत चौंक जाता हूँ। आर दे रियली ऑफिसर्स ऑफ बांग्लादेशी आर्मी or any army, whatever? Because an officer of any army should have a good knowledge, good command over military history. और मिलिट्री हिस्ट्री में अगर आप जाकर देख सकते हैं कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहा और हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा। They got liberated from Bangladesh, from Pakistan in 1971, and it's been 50 plus years. What's their ranking? What's the credibility of Bangladeshi armed forces in the world platform, in the global platform? What's the credibility? Zilch, nothing. And we got our independence in 1947, and after 40 years of our, after 50 years of our independence, that is in our after 2000, ठीक है, our ranking was in top 5. I think we were 4th or 5th. बात यहाँ पे सिर्फ रैंकिंग की नहीं है। अब आप कैरेक्टर भी छोड़ दीजिए। अब इस चीज़ को देखते हैं कि whom have you produced after independence? मतलब you must produce some generals, okay, of global order, ठीक है, जिन्हें देख के दूसरे फौज भी कुछ कहें कि नहीं ना भाई इस फौज को मानना पड़ेगा। दे हैव प्रोड्यूस्ड लीडर्स लाइक सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। We produced generals like Field Marshal Sam Manekshaw, K.M. Kariappa, General J.F.R. Jacob, and many more. Whom have you produced? Ziaur Rahman, who did coup and ascended to the throne, and after ascending to the throne, he started containing India. He thought of containing India, but unfortunately, he died. After ascending to the throne, his policies was pro-Pakistani. Had he forgotten what Pakistan did to his people? I mean, ये तो एक मतलब मानसिक दिवालियापन का एक जीता जागता उदाहरण था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि be pro-India, be pro-Indian Bangladesh. I'm not saying that. At least be pro to Bangladesh. Be pro to your people, the sentiment of your people. You know, नाम में बहुत कुछ रखता है। बहुत लोग कहते हैं कि नाम से क्या काम, नहीं, नाम से बहुत कुछ काम है। नाम बहुत मैटर करता है। There are two Zia in Indian subcontinent, in South Asia, at least in the military circle. There is one Zia-ul Haq from Pakistan Army, and another Ziaur Rahman of Bangladeshi Army. दोनों का हरकत से the most significant commonality of both of them is Islamization of the services. And see what happened to Pakistan and what is going to happen with the Bangladeshi Army, armed forces, by and large. तो ये इनका हाल है। और इनके भूतपूर्व सैनिक, रिटायर्ड सैनिक ये कहते हैं कि कलकत्ता दूर नहीं है, कलकत्ता को हम कैप्चर कर लेंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। आई थिंक दे हैव फॉरगॉटन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दे आर थ्रेटनिंग द सेम कंट्री, द कंट्री हु रीच्ड ढाका विद इन जस्ट 13 इन इस मैटर ऑफ 13 days। 13 दिन में हम पहुँच गए थे। ऐसा नहीं कि मतलब चलते फिरते पहुँच गए, जंग लड़ते लड़ते पहुँचे हम लोग। आप उस मुल्क को डर दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारा ये प्रांत छीन लेंगे, वो प्रांत छीन लेंगे।
कभी आपने गिरबान में झाँक के देखा है आपने? आज से 30 साल बाद, 25 साल बाद आपका क्या हश्र होगा? 30 साल तो बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, 20 साल ही मान लेके चलिए। 20 साल बाद आपका क्या हश्र होगा? अभी जलवायु परिवर्तन, द क्लाइमेट चेंज, द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, नॉट न्यूक्लियर वॉरफेयर, रादर द क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट चेंज की वजह से अराउंड 20 to 25% ऑफ बांग्लादेश, साउथर्न बांग्लादेश रीजन विल बी सबमर्ज्ड। बे ऑफ बंगाल के तले डूब जाएगा। बे ऑफ बंगाल खा जाएगा 20% एरिया बांग्लादेश के, और 30% एग्रीकल्चर लैंड। थिंक ऑफ बांग्लादेश, व्हाट विल बी देयर कंसिक्वेंस। हंगर इंडेक्स में कहाँ पे पहुँच जाएंगे? अभी जो आपका हाल है वो कुछ बेहतर नहीं है जनाब, बांग्लादेश का हाल कुछ बेहतर नहीं है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो आज से 20 साल बाद जब क्लाइमेट चेंज का पूरा ये हश्र होगा, बड़े बड़े जब शेयर डूब जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया भी नहीं डूबने वाला, लेकिन इंडिया अपने गिरबान में झाँक के देखता है, उस तरह से काम भी करता है। लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बांग्लादेश का हाल अभी वैसा हो चुका है जैसा एक बचपन में हमने कहावत सुना था, वो मतलब कार्टून में दिखा देते कि एक गधा, मतलब बुढ़बक आदमी पेड़ के डाली पे बैठा है, और जिस डाली में बैठा है उस डाली को वो काट रहा है। दिस हैज़ बीन द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश, एटलीस्ट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। ये उनका रवैया है। तो बांग्लादेशी लोगों को एक ही हिदायत देना सही रहेगा कि एटलीस्ट बी ट्रूथफुल टू योर पीपल, बी लॉयल टू योर कंट्री। डोंट थिंक अबाउट चाइना और पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री और इवन इंडिया। डोंट थिंक अबाउट अस और एनी अदर कंट्री, फर्स्ट थिंक अबाउट योर पीपल। और ये हमेशा याद रखे कि जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, कोई भी आपदा आता है, तो सबसे पहले कौन हाथ आगे बढ़ाता है, ये एक बार सोचिएगा। ये एक बार सोचने वाली बात है। और क्लाइमेट चेंज के लेके लेट देम बी prepared. Let the Bangladeshi regime think about climate change more than anything else. More than anything else. We are a tropical country. Bangladeshi rivers are world famous. कुछ इनका वर्ल्ड फेमस हो या ना हो, इनका रिवर और सारी वर्ल्ड फेमस है। तो अगर समंदर का अगर पानी जो अगर 1 मीटर अगर बढ़े तो नदियों का क्या हाल होगा, वो एक बार सोचना लायक है। गीदड़ भपकिया तब काम नहीं आएंगी, तब काम नहीं आएंगी। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा भाई जिस तरफ जाता है, छोटा भाई उसी तरफ जाता है। अभी ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप बड़ा भाई किसे मानने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को मानिए, लेकिन आप पाकिस्तान को अगर बड़ा भाई मानेंगे तो उसी के राह पे चलेंगे। आज उसका बदहाली, बदनसीब नहीं, उसका नसीब सबसे बेहतर था, लेकिन अपने ही मानसिक दिवालियापन के कारण आज देखो वो किस कगार पे पहुँच गया है। और चीन की तरफ वो रुख ना करे तो ही बेहतर होगा बांग्लादेश के लिए, because they are very much well aware of the Chinese policies, how Chinese eat their own friends, allies. Now coming to Indian perspective, what kind of mistakes that India has committed after 71 and now also. So to start with the earliest mistakes. आप सभी को पता होगा कि 71 में जब सरेंडर हुआ था, सरेंडर डॉक्यूमेंट लेके कौन गए थे? यस, इट वाज none other than लेफ्टिनेंट जनरल JFR Jacob, the finest, one of the finest military commanders that independent India had. जंग जीतने के बाद उन्होंने मतलब एक हिदायत दिया था। आई एम कोटिंग हिज फ्रॉम वन ऑफ हिज, आई थिंक हिज ऑटोबायोग्राफी, यस इट वाज रिटन बाय हिम, हिज ऑटोबायोग्राफी। तो वहाँ पे उन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट्स जो थे, ब्यूरोक्रेट्स जो थे, उनको उन्होंने कहा था कि मेक सम नेसेसरी एडजस्टमेंट और इन दी क्लॉसेस, मतलब एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है उन्होंने जो कहा था कि थोड़ा मतलब अरेंजमेंट करें बांग्लादेशी जो माइनॉरिटीज़ जो हैं, तो माइनॉरिटी पीपल जो है उनके लिए कुछ प्रावधान लाए कि वो लोग चैन से जी सके। ये हमारे डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने कहा था, ठीक है। बदले में उन्होंने क्या कहा, दैट मीन्स व्हाट वाज द रिप्लाई फ्रॉम पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक सर्कल? ओ जनरल, यू फॉर द वॉर, यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब, इट्स योर ड्यूटी टू, you have done your duty, now leave it to us, we will do whatever necessary, whatever good. क्या गुड दिख रहा है? क्या गुड दिख रहा है? It is said in the armed forces that a general is able to see at least a year ahead, at least a year ahead. That should have taken his word seriously. He was a man of character. He was an experienced man, a man who had seen World War II, various fronts, perhaps the architect of the surrender. Our
bureaucratic dispensation. Do not pay any attention to his kind of words. यही हमारा रवैया है, इसी चीज़ ने हमको खा गया। वो एक कहावत है, कहावत नहीं एक्चुअली, इट्स अ कोट बाय वन ऑफ द greatest strategic thinkers of modern India, and incidentally he is the father of our honorable Foreign Minister Dr. S. Jaishankar. I'm talking about the dawn of Indian strategic thinking, Dr. K. Subramaniam. He said, I'm quoting him, politicians enjoy power without responsibility, bureaucrats wield power without accountability, military assumes responsibility without any direction. This is the reality of India's politico, military and bureaucratic circle. ये तो हाल है हमारा। अगर इस हाल में रह के मतलब शुरुआत अगर हमारा ऐसा हो, हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या अपने आप से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हम आगे जाके हमारे जो वहाँ पे जो डायस्पोरा है, हमारा डायस्पोरा कहना सही भी हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन कह सकते कि जो माइनॉरिटीज़ जो है उनके लिए हम उन्हें क्या मदद पहुँचाएंगे, हम क्या मदद पहुँचाएंगे। हमने सोच लिया कि CA ला के हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। यस, इट वॉज सर्टेनली गुड, इट वॉज गुड मूव, गुड अमेंडमेंट, लेकिन बात यही तक सीमित नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग आफ्टर दैट? हाल फिलहाल में जो हादसा हुआ कुछ दिन पहले, जो जिस तरह से निंदित कार्य किया गया बांग्लादेश के द्वारा, मेरे पास एक ही सवाल है बांग्लादेश से कि वेयर वॉज योर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस जब इतना बड़ा कुछ हो रहा था? आप लोग तो बहुत चेस्ट थम्पिंग करते हैं इन चीज़ों को लेके, नहीं कि वी आर वेरी मच सीरियस अबाउट आवर इंटरनल सिक्योरिटी। व्हाट काइंड ऑफ सीरियसनेस इज दिस? You know, there's a saying among the Americans, don't tell us, show us. So here we are also telling to the Bangladeshi dispensation that show us. What are you doing to safeguard your minorities? Today you are lynching them. Today you are not protecting them. Tomorrow, why will they flee? वो हमारे पास ही आएंगे ना, इंडिया के पास आएंगे, और रिश्ता तब और भी ख़राब होने होगा। तो व्हाट डू दे वांट? दे आर कंटिन्यूसली रेंटिंग एंटी इंडिया स्लोगन्स फ्रॉम सिंस 2024। ये सभी को समझ में आ रहा है कि व्हाई आर दे डूइंग दिस? दे आर डूइंग दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ ISI। लेकिन आप लोग तो बंदर तो नहीं है कि चुटकी बजा दिया और नाचना शुरू कर दिया। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर सेंसिबल पीपल, यू आर एजुकेटेड पीपल, and many of these protesters belong to the Gen Z, and Gen Zs are known for their rational thinking, rational mind. What do you have? What have you done? Is this the way you are thinking? Is this your rational mindset? This should be thought after. So my assertion is that मैं यहाँ पे कोई किसी को भरा बुला के नहीं रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक असेसमेंट दे रहा हूँ कि सच एंड सच इज दिस कंडीशन। इट्स नॉट जस्ट pathetic condition। और जो कहते आ रहे हैं कि मरहम लगाया जाना चाहिए, एटलीस्ट आई हैव रिसीव्ड दिस मैसेज फ्रॉम बांग्लादेशी पार्ट। बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, उनके मिलिट्री सर्कल में, डिप्लोमेटिक सर्कल में, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में भी हूँ, ज़्यादातर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सर्कल में मैं देखता हूँ कि कहते हैं मरहम लगाना चाहिए। कहाँ पे मरहम लगाना चाहिए? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू देम। हु शुड इनिशिएट दिस प्रोसेस फर्स्ट? दे शुड थिंक फर्स्ट and act first. इंडिया ने जो हो पाया उससे कहीं ज़्यादा किया। Still, I agree that there are some portions where we have failed, but still, as a good neighbor, we have done exceptional work. I agree that we could have done more, but we have already done more than threshold. It's your time to do something, at least in the favor of इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन। क्योंकि बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट ग्रोथ कुछ भी कह लीजिए, इट इज़ गोइंग टू हैपन अंडर द बैनर ऑफ इंडो बांग्लादेश कोऑपरेशन। अंटिल यू हैव, जब तक आपका इंडिया के साथ, दैट इज बांग्लादेश का इंडिया के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं होता, बांग्लादेश ग्रोथ विल बी पैरालाइज्ड इन एनी फॉर्म।
ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो जो समझदार लोग हैं वो सभी कह रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। ठीक है। एंड बांग्लादेशी पीपल since long back, time immemorial, they are of a democratic thinking. You cannot impose any kind of anarchy, especially unarchy is not going to work for the people of Bangladesh. They will rebuke. आज नहीं तो कल वो पलटवार करेंगे। आपका जो देश जो है बांग्लादेश का नाम समझ में आ रहा है किस आधार पे खड़ा हुआ है, किस आधार पे? बांग्लादेश। और किस आधार पे उसने वेस्ट पाकिस्तान से हटा, और उसका नींव क्या है बांग्लादेश का, वो नाम से समझ में आता है। और वहीं पे आज रविंद्रनाथ टैगोर का मानमर्दन हो रहा है। Where is this country going? That's a question. That's a question mark. It's time to think, not to rent anti-India slogan, not to rent any kind of pro-Pakistani slogan under the influence of ISI, and not to make any kind of bases, military bases, just to poke India. These are not going to work. These are literally not going to work. Bangladesh should think about two things. First is about the welfare of their own people, and second about the climate change that is going to hit the world. Climate change will not spare anyone in the world, no matter where are you from, what is your economic background, what ethnicity do you have. Climate change इन सब कुछ चीज़ों को नहीं देखेगा. Climate change सिर्फ एक ही चीज़ देखेगा कि are you in this world. If you are going to Mars, it's all right, but your economic condition and your scientific development tells us that you are going to nowhere. Okay, so better adjust yourself with climate change and think about climate change. Bangladesh, like India, Bangladesh is also an agricultural country. ठीक है, कृषि प्रधान देश है बांग्लादेश। उसी देश का अगर 30% हिस्सा अगर पानी में डूब जाए तो किस कगार पे पहुंचेगा वो मुल्क, क्या बदहाली होगा उस देश का। इस बात पे गौर फरमाना चाहिए। That's all from my side, and it was totally an academic discussion, and I expect my viewers to comment from an academic perspective, from a scholarly perspective, not to rent any kind of anti humanitarian slogan or anything. I just want a pure conversation, good conversation. All right, so this was all about my assessment. Thank you very much for watching this video. Maxim Sinha signing off.